सो डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स में इन जीएसटी हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में वी अंडरस्टूड इन द लास्ट वीडियो वी अंडरस्टूड व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, दैट we can expect something between 4 to 8 marks from this particular chapter. Time of supply is very much important for identifying the rate of GST, because जो GST का रेट रहेगा, जो किसी भी ट्रांजैक्शन पे GST हम जो चार्ज करेंगे, it will be based on time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई के डेट के दिन जो रेट रहेगा दैट रेट वी विल बी यूजिंग. Similarly, if any invoice is in the foreign currency and we are supposed to convert that foreign currency invoice into Indian rupees for the purpose of GST, so we will be using the exchange rate for currency conversion as on the date of time of supply. So in the case of time of supply, we are here to identify that particular event, that particular date, which is to be used for charging GST and for conversion of foreign currency into Indian rupees, if any. This time of supply we have to study majorly in three parts: section 12, time of supply of goods; section 13, time of supply of services; section 14, time of supply in the case of change in the rate of tax. And while identifying this, we need to use section 31, which is related to issue of invoices under GST. Time of supply is majorly to be identified under forward charge, reverse charge, vouchers, residual case, penalty for delayed payment of compensation, etc. उसमें से हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स स्टार्ट किया था, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज वी अंडरस्टूड, वी said that time of supply of goods under section 12 for the purpose of forward charge will be earlier of majorly two events: date of issue of invoice or due date of issue of invoice under section 31. Date of receipt of payment is not to be considered because of that notification of 66 of 2017. Plus, due date of issue of invoice for the supply of goods under section 31 will be determined based on four different categories or four different situations. Number one, where supply involves movement of the goods, जहाँ पे goods are moved from location 1 to location 2, invoice has to be issued on or before removal of that particular goods. In any other case, means where there is no movement of the goods, invoice has to be issued on or before making goods available or delivery of the goods. In the case of continuous supply of goods, invoice has to be issued based on the statement of account or date of receipt of payment by the supplier. Supplier को payment कब मिलेगा वो date. In the case of goods sold on approval or return basis, invoice has to be issued within 6 months from removal of goods or time of supply. Means if the approval is received within 6 months, then that date or the end of 6 months. Right? So we said where supply involves movement of the goods, invoice has to be issued on or before removal of the goods. In any other case, on or before delivery of the goods or making goods available. In the case of continuous supply, it is dependent on statement of account or receipt of payment. In the case of sale on approval or return basis, it is time of supply or 6 months from removal of the goods. And receipt of payment means earlier of two events: receipt of payment as per supplier's books of account or credit in his bank account, whichever is earlier. Based on this, we have solved this question number 1, question number 2. Okay, now we are going to understand time of supply of goods in the case of reverse charge mechanism. So we are here to understand time of supply of goods under reverse charge mechanism. So in short form, we call it RCM. Before we understand what is the rule or what are the provisions for identifying time of supply of goods under reverse charge mechanism, first let's try to understand difference between the forward charge and reverse charge. Forward charge, which we have studied just now. So what happens in forward charge? Supplier issues invoice along with the base price, or we can say transaction value, let us say rupees 100, plus GST, let us say it is rupees 12. Supplier himself issues invoice worth rupees 112. Recipient will pay 112 rupees to supplier
and in turn supplier will pay this GST into the government's treasury or into the government's account. So in the case of forward charge, supplier has to identify time of supply and he has to deposit the GST into the government's account or government's treasury. So in the case of forward charge, time of supply is to be identified by whom? By supplier. What will happen if the same transaction is covered under the reverse charge mechanism? In reverse charge mechanism, supplier will issue invoice of only transaction value or base price, let us say 100. He will issue invoice only worth rupees 100 and will give a note or a kind of declaration stating that this particular transaction is covered under reverse charge mechanism. Recipient will calculate GST on it. Recipient will arrive or will decide time of supply of this particular transaction, and recipient himself will deposit the GST into the government's treasury or government's account. So in the case of रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई जो आइडेंटिफाई करना है वो किसको आइडेंटिफाई करना है? इट इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय whom? बाय recipient. So fundamental difference in forward charge and reverse charge is that in the case of forward charge, supplier will issue invoice along with GST. Supplier will collect GST from recipient and deposit it into the government's account. So in turn, in the case of forward charge, time of supply is to be identified by whom? It is to be identified by supplier. But in the case of reverse charge mechanism, supplier will issue invoice only for the base price or the transaction value, and he will give a note that this particular transaction is covered under reverse charge mechanism. Recipient will identify time of supply and recipient himself will deposit the GST into the government's account. So forward charge में क्या होता है? Supplier base price और GST दोनों का invoice मिलाकर देता है. सप्लायर रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और सप्लायर ये जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा. सो फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई किसको करना है? सप्लायर को करना है. बट रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिवर्स चार्ज में सप्लायर सिर्फ बेस प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू का इनवॉइस देगा और एक नोट या डिक्लेरेशन दे देगा इनवॉइस में कि ये ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड. रिसिपिएंट खुद होकर इसका जीएसटी कैलकुलेट करेगा और रिसिपिएंट खुद होकर इसका जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा. देयरफॉर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन रिसिपिएंट. रिसिपिएंट खुद टाइम ऑफ सप्लाई भी आइडेंटिफाई करेगा अगर ये ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हुआ तो. ठीक है. सो फॉरवर्ड चार्ज वी आर ऑलवेज टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर. Reverse charge we are always talking from the point of view of the recipient. अब ये जानने की कोशिश करते हैं what is the time of supply of goods under reverse charge mechanism. Okay, so let us try to understand time of supply of goods as per reverse charge mechanism under section 12. Okay, so time of supply of goods under reverse charge mechanism under section 12 is earlier of below. So there are few events whichever is earlier. First, date of receipt of goods. Second, date of payment by recipient. And third, 31st day from date of issue of invoice.
Okay, so time of supply of goods under reverse charge mechanism under section 12 is earlier of these three events, event number A, B and C. Event A says date of receipt of goods, means recipient को goods कब receive हुए. Event B से date of payment by recipient, recipient ने supplier को payment कब किया. And event number C is 31st day from issue of invoice. Invoice के बाद में 31st day out of these three events whichever is earlier is the time of supply of goods under reverse charge mechanism. So first date of receipt of goods, recipient को ये goods कब receive हुए, actual में receive कब हुए. दूसरा डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कब किया. और तीसरा 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, यानी इनवॉइस के बाद में 31st डे. बट इन केस इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड as per above, if you are as a recipient, if you are unable to identify time of supply as per this event number A, B and C, then time of supply will be date of entry of goods in recipients books of account. Means if you have event number A, B and C, so you will compare event number A, B and C, and whichever is earlier will be time of supply. So out of these three events, if you have all the three events, then earlier of these three events will be time of supply. Out of these three events, suppose you have only two events available. Let us say आपके पास में event number A और B ही available है, C available नहीं है. Then time of supply will be earlier of event number A and B. Or if you have event number A and C only with you, then time of supply will be earlier of event number A and C. Or you have event number B and C only with you, then time of supply will be earlier of event number B and C only. Let us say out of these three events you have only one event available, either event A or B or C. Then time of supply will be that particular event itself. मतलब अगर ये A, B और C तीनों इवेंट्स अगर आपके पास में अवेलेबल है, किसी भी क्वेश्चन में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी पता है, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट भी पता है एंड 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस भी पता है, तो इन तीनों इवेंट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. अगर इन तीनों इवेंट्स में से कोई दो इवेंट्स अवेलेबल है तो उन दो इवेंट्स में व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर इन तीनों इवेंट्स में कोई एक इवेंट अगर अवेलेबल है तो दैट इवेंट इटसेल्फ विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. बट if there is a situation where you do not have event number A, you do not have event number B and you do not have event number C as well, मतलब आपके पास में A भी अवेलेबल नहीं है, B भी अवेलेबल नहीं है, C भी अवेलेबल नहीं है, U अवेलेबल नहीं है, you do not have any of the event as specified here A, B and C. अगर आपके पास में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये भी पता नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ये भी पता नहीं है, 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस ये भी पता नहीं है, then as a recipient your time of supply will be date of entry of the goods in the recipient's books of account. recipient अपने books of account में उन particular goods की entry जिस दिन करेगा, जिस डे करेगा, that day will be your time of supply. I hope it is clear to you. Now if you have any question in your mind कि सर ये जो रेड में आपने लिखा है if toss cannot be identified as per above, तो ये सिचुएशन कब आएगी, इसका आपको एग्जाम्पल वगैरह अगर आपके दिमाग में चाहिए आपको, या अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए आप वेट कीजिए. आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे या कुछ थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देयर वी विल स्टडी सच एग्जांपल्स और सच इवेंट्स एज वेल. अभी फंडामेंटल जो रूल्स है, बेसिक जो रूल्स है, उन्हें आइडेंटिफाई करने की, उन्हें एब्जॉर्ब करने की आप कोशिश कीजिए. सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म will be earlier of below, date of receipt of the goods यानी एक्चुअल में रिसिपिएंट को गुड्स कब मिले वो डेट. दूसरा डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कब किया वो डेट. तीसरा 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी कि इनवॉइस के बाद में 31st डे.
And in case if time of supply cannot be identified as per above parameters, A, B and C से आप time of supply identify नहीं कर पा रहे हो, तो time of supply will be date of entry of the goods in the recipient's books of account. If you have event number A and B and C, then earlier of event A, B and C. If you have any two events, earlier of those two events. If you have only one event, then that event itself will be the time of supply. Now the question arises here, sir, what do you mean by date of payment by recipient? ये recipient के payment का मतलब क्या है? What do you mean by date of payment by recipient? What is the meaning of this particular term? Now its meaning is very simple, जो हमने पहले भी पढ़ा है. Its meaning is date of payment as per recipient's books of account, date of payment as per recipient's books of account, or date of debit in recipient's bank account, date of payment as per recipient's books of account, or date of debit in recipient's bank account, whichever is earlier. यानी रिसिपिएंट का जो पेमेंट किया है एज पर रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पेमेंट का डेट दिख रहा है वो डेट, या फिर रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में डेबिट होने वाला डेट, whichever is earlier will be known as date of payment by recipient. So in turn we can say time of supply of goods under reverse charge mechanism is dependent on three events. I know I am showing 4 number, but I am saying 3 events. What does it mean? Date of receipt of the goods to the recipient. Second, date of payment by recipient as per his books of account. Third, date of payment by recipient as per his bank account. Fourth, 31st day from date of issue of invoice. And if time of supply cannot be identified as per above parameters, then time of supply will be date of entry of the goods in the recipient's books of account. अगर जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है या डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट है, इस केस में अगर आपको बैंक एंट्री और बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री दोनों दिया तो उन दोनों का अर्लियर लेंगे, और अगर कोई एक ही इवेंट दिया देन यूज दैट इवेंट इट ओनली. ठीक है. नाउ वी विल ट्राई टू रीड दिस प्रोविजंस फ्रॉम दी नोट्स एज वेल. हम जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस या स्टैट्यूटरी वर्ड्स है उसके साथ में भी हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे. लेट्स ट्राई टू रीड देम. सो what we are saying, receipt of goods that are taxable under reverse charge mechanism section 12. So time of supply in this case will be earliest of the following dates. नीचे दिए गए events में से whichever is earlier. पहला, date on which goods are received. दूसरा, date on which payment is recorded in the books of account of the entity that receives the goods, or the date on which it is debited from the bank account, whichever is earlier. In short, what we will say, this second condition means date of payment यानी कि DOP by recipient. And इसका मतलब हमने पढ़ा earlier of entry in books of account or debit from bank account. And the third event is date immediately following 30 days from the date of issue of invoice. Date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by supplier. Immediately following 30 days. That means what we call it 31st day. Right? And if it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, then time of supply will be the date of entry of the goods in the books of account of the recipient of the supply. जो recipient of the supply है उसके books of account में जो entry का date है, that particular date will be the time of supply. So एक बार आप ये provisions को पढ़ लीजिए अच्छे से before we proceed with the question.
अगेन अगर आपको नीड है, इफ यू फील इट इज नीडेड, तो आप वीडियो में बैक जाइए, इन सारी प्रोविजंस को एक बार फिर से सुनिए, नोट करना है तो नोट कीजिए, रीड करना है तो रीड कीजिए, एंड देन प्रैक्टिकल की तरफ बढ़िए. So whenever we see a practical, try to apply the provision or try to find out the solution on your own first. आप पहले खुद solution सर्च करने की कोशिश कीजिए, फिर भले ही वो गलत क्यों ना हो तो भी चलेगा, और उसके बाद में जो हम साथ में सॉल्व करेंगे उसको देखिए. अगर आपका जवाब सही है तो वेरी गुड, अगर गलत है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमारी गलती थी, आप उसे करेक्ट करके आगे बढ़ोगे, वो गलती फिर रिपीट आगे होने वाली नहीं है. ठीक है. Let us try to read the question. Question 3 क्या कह रहा है? Determine the time of supply from the given information. यानी नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन से आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है. तो मे 4 सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. क्वेश्चन में दे दिया कि सप्लायर ने गुड्स इनवॉइस किए, मतलब ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है, एंड इट इज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी. मे 12 ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स. मे 12 को ब्रिज एंड कंपनी को गुड्स मिल गए, और मे 30 ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट. ब्रिज एंड कंपनी ने पेमेंट कब किया है? मे 30 को किया है. तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अर्लियर ऑफ बिलो रहेगा. पहला, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, किस डेट को आपको गुड्स मिले हैं वो क्वेश्चन में दिया है आपको. दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया है? मे 30 को, वो क्वेश्चन में दिया है. तीसरा, 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी मे 4 प्लस 31 डेज दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजीली. और ये तीनों इवेंट में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई. सिंपल इज दिस. तो फर्स्ट ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑन योर ओन. आप खुद के सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं उसको देखना कंटिन्यू कीजिए. तो चलिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो हम क्या कहेंगे? So we will say time of supply of goods अंडर सेक्शन. कौन सा सेक्शन है गुड्स का? देखिए सेक्शन 12 है, सारे 12 में दिए हैं. अंडर सेक्शन 12 will be earlier of below. और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग हियर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, ये भी लिख दिया, एग्जाम में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेट अस राइट इवेंट नंबर ए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स टू रिसिपिएंट. रिसिपिएंट को गुड्स कब मिले? देखिए, ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स गुड्स ऑन मे 12. मे 12 को ब्रिज एंड कंपनी को क्या मिले हैं? गुड्स मिले हैं. सो दिस डेट इज मे 12. दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट. तो एज अ रिसिपिएंट आपने पेमेंट कब किया? देखिए मे 30, ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट. तो दिस डेट इज मे 30. एंड थर्ड इवेंट इज 31st डे फ्रॉम इनवॉइस. So let us see invoice कब का है? Invoices of May 4. May 4 supplier invoices the goods. So invoice date is May 4. So let's try to find out that 31st day. So what we will say? We will say May 4 plus
31 days. Okay, so how I am going to identify it, let's try to understand. वैसे तो कैलकुलेशन सिंपल है, बट स्टिल फॉर इंफॉर्मेशन व्हाट वी विल से, सर मे इज ऑफ द 31 डेज, मे 31 दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जन फेब मार्च अप्रैल मई, सो मे इज ऑफ द 31 डेज। उसमें से मे 4 का इनवॉइस डेट था, मीन्स आई हैव 27 days of May, right? I need 31st day. So how many days are left? So here days are left 4 days. और मई के बाद में क्या आएगा? जून 4. So 31st day will be June 4. March, April, May, Jan, Feb, March, April, May. So in this case मई के 4 दिन तो चले गए, मई 31 का होता है, तो 31 में से 4 गए, तो मई के 27 डेज आई विल बी यूजिंग, आई नीड 31 डेज, तो 31 डेज में से 27 डेज तो मई महीने के चले गए, तो जून के कितने डेज आएंगे मेरे पास में? ओनली 4 डेज। यहाँ पर आई विल राइट, here we will write June 4. So earlier of these three dates, May 12, May 30 and June 4, whichever is earlier is what? May 12, right? So therefore we will say, therefore time of supply will be May 12. Okay, so done, simple is this. So the question itself says that this particular that these goods are taxable on reverse charge basis. Invoice date is given, when the goods are received by the recipient it is also given, and when the recipient makes the payment it is also given. So what we will say, time of supply of goods under section 12 will be earlier of below, date of receipt of the goods, that is May 12, date of payment by the recipient, that is May 30, and 31st day from invoice, that will be June 4, therefore time of supply is May 12. Sir, for how many marks this kind of questions will be asked in the examination in general? Sir, in general, this kind of questions will be asked in the examination again for 4 marks only. And you have all the chance and all the legitimacy to claim 4 out of 4. चलिए आगे बढ़ते हैं. So we have one more question on this particular provision, time of supply of goods chargeable under reverse charge mechanism. What it says? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन से टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करो. सो अगेन मे 4, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सप्लायर ने गुड्स इनवॉइस किए, दोज आर टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड इट इज ऑफ द गुड्स. So May 4, supplier invoices goods taxable on reverse charge basis to Pillar and Company. This is May 4. June 12, Pillar and Company receives the goods which were held up in transit. Okay, Pillar and Company received these goods on June 12. July 3, payment made for the goods. So Pillar and Company ने इस goods का payment कब किया है? July 3 को किया है. तो what you are supposed to do, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और वो सारे डेट और इवेंट्स लिखकर टाइम ऑफ सप्लाई पहले खुद होकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करो और आपका आंसर और हमारा आंसर हम कंपेयर करेंगे. आप कंपेयर करो, अगर करेक्ट है तो वेरी गुड, इनकरेक्ट है तो मिस्टेक ध्यान में आ जानी चाहिए. So let us solve this particular question. इसे हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So we have here question number 4. ठीक है. So what we will say? We will say time of supply of goods under section 12 will be earlier of below, and we are talking about reverse charge mechanism. Okay, so event number A, date of
receipt of goods, कि आपको goods कब मिले. So देखिए, when have you received these goods? June 12, Pillar and Company receives the goods. So Pillar and Company receives these goods on June 12. So let us write here June 12. Okay. Event number B, date of payment by recipient. So as a recipient आपने payment कब किया? So July 3 payment made for the goods. So you have made the payment on July 3. तीसरा 31st day from invoice. Right? In the same format we wrote question number 3 as well. In the same format we are writing question number 4 as well. So 31st day from invoice. So let us check invoice date is what? Invoice date is again May 4. So let's take it. So our invoice date is May 4. So what we will say? We will say May 4 plus 31 days. So again what we will say, how to calculate this, sir? So we will say, sir, May is of the 31 days. So 27 days of the May. I need 31 days to add 4 days of the June. So this total will be 31. Right? तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आप खुद के कैलकुलेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा है. रफ में ऐसे कैलकुलेशन अगर नीड है तो हम लिख सकते हैं. राइट? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे June 4. June 4. So out of the given 3 events or given 3 dates, June 12, July 3 and June 4, whichever is earlier. So earlier date is June 4. Right? Earlier date is June 4. So therefore what we will say? Therefore, इसीलिए time of supply will be, it will be June 4. So our time of supply will be June 4. Simple as this. So this is how we are going to write the answer. We are going to present it. So if you write in the proper format, in the proper way, so you get complete marks. Right? So अभी तक हम लोगों ने goods में क्या क्या पढ़ लिया है? What are the things which we have understood in the goods? So first and foremost, what we understood? We understood time of supply of toss of goods under forward charge. First हमने ये पढ़ा. Then we understood toss of goods under reverse charge. While studying this, we also understood few meanings or few terminologies. The one is due date for issue of invoice under section 31. So this is also we understood. Simultaneously we understood meaning of term date of receipt of payment, or from the recipient's point of view date of payment. So supplier अगर रहेगा तो हम receipt of payment कहेंगे, इसमें भी हम कहेंगे कि receipt of payment as per the books of account और credit in the bank account. और recipient अगर होगा reverse charge mechanism में जो आगे payment कर रहा है, for him we will say date of payment as per his books of account or debit in his bank account. So we have understood these much things in the chapter time of supply till now, जो आपको clear होनी चाहिए. Okay. Now we are going to study time of supply of goods only, but in the case of voucher,
and some other rules. But before I proceed, let me tell you one more interesting fact. Let me tell you one more interesting fact, that in the case of forward charge and reverse charge mechanism, in the case of forward charge and reverse charge mechanism, we have we have separate rules for goods and a time of supply of goods. For time of supply of goods we have separate rule, and separate rule for time of supply of services. So for forward charge we have separate rule for identifying time of supply of goods and time of supply of services. Similarly, for reverse charge we have separate rule for identifying time of supply of goods and time of supply of services. So forward charge and reverse charge mechanism, we have separate rules for identifying time of supply with regards to goods and services. But in the case of others means what? Sir, what are other things? Let me show you what are the things which we study in the time of supply. In the case of others, forward charge, reverse charge we have done, voucher, residual case and change in the rate of tax. Simple words में अगर हम कहें, so one is voucher, second is residuary case, third is penalty or charges for delayed payment, and at the same time one is change in the rate of tax. For this A, B, C and D, we have a common rule, we have a common rule for goods and services. Understood? So what is happening, ये इनके जो sections है वो तो अलग है. Section 12 में goods बोला है, 13 में services बोला है, 14 में change in the rate बोला है, and so on and so forth. Sections are different, but जो words and जो language use की है sections में for the purpose of this voucher, residuary cases, penalty for delayed payment or change in the rate of tax is same, exactly similar. So what we have to do, we have to focus on forward charge for goods separately and services separately, reverse charge for goods separately and services separately. And once we have to read this voucher, residuary case, penalty or change in the rate of tax for goods and services independently, and after reading हमें सिर्फ किसी एक जगह पर इधर गुड्स वाले सेक्शन में उसकी प्रोविजंस पढ़िए या फिर सर्विसेज वाले सेक्शन में उसकी प्रोविजंस पढ़िए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए और आगे बढ़िए. So this will save our time while revising the provisions. Okay. So अभी गुड्स फॉरवर्ड चार्ज तो हो गया, गुड्स रिवर्स चार्ज तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं गुड्स के वाउचर्स की तरफ. Now we will try to study and understand time of supply of goods in the case of vouchers. But first question is that what is the meaning of term voucher, right? So we are now trying to understand time of supply of goods, that is to in the case of vouchers. So what I will write simply time of supply TOS for vouchers. First question is what is the meaning of term vouchers, sir? Vouchers का meaning क्या है sir? Vouchers मतलब क्या? वो जो आपको Sodexo vouchers मिलते हैं या वाउचर के कूपन्स मिलते हैं जिसे आप रिडीम करके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकते हो, ग्रोसरीज परचेस कर सकते हो या कोई क्लोथ परचेस कर सकते हो और एनीथिंग यू कैन परचेस. सो उसे हम कहते हैं वाउचर. So vouchers are those coupons which you use
इंस्टेड ऑफ मनी फॉर पेइंग द कंसिडरेशन। जैसे मान लेते हैं कि लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्रोमा का एक वाउचर मिल गया, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एक वाउचर मिल गया जहाँ पे लिखा कि आप 10,000 का इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप वो वाउचर लोगे, जाओगे क्रोमा में वाउचर दिखाओगे, 10,000 का आइटम परचेस करके घर पे आ जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ मनी यू यूज दैट पर्टिकुलर कूपन और अ वाउचर, तो उसको हम कहते हैं वाउचर। जिसका एग्जांपल है सोडेक्सो कूपन्स। बहुत सारे जगह पर ऑनलाइन में आपको वाउचर्स या कूपन्स मिलते हैं, दीज आर ऑल्सो वाउचर्स। So vouchers are kind of instruments, those are used instead of money for paying consideration and supplier agrees to accept it instead of money. Money के जगह पर उसे accept करने के लिए वो हाँ कहता है, उसको हम कहते हैं vouchers। अब vouchers का जो time of supply है ये डिपेंड करता है, ये जो vouchers है इस voucher से जो intended supply है, ये जो vouchers जो इशू किया है आपने एज अ सप्लायर, तो ये वाउचर से जो इंटेंडेड सप्लाई है वो आइडेंटिफाइएबल है या अनआइडेंटिफाइएबल है। सो इफ इंटेंडेड सप्लाई इज आइडेंटिफाइएबल then you apply different rule for identifying time of supply, and in case if you reach to a conclusion if you reach to a conclusion that intended supply is not identifiable, if intended supply from this particular voucher is identifiable then you apply different rule, and if intended supply is not identifiable from this voucher then you apply a different rule. First let us understand the rule and then we will understand what is the meaning of term intended supply is identifiable and intended supply is unidentifiable, that we will study later on, that we will study later on. So if intended supply from this particular voucher is identifiable, if you are able to identify what is the intended supply from this voucher, then time of supply is, then your time of supply is date of issue of वाउचर। अगर वाउचर से इंटेंडेड सप्लाई आपको पता है, आपको आइडेंटिफाइबल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। जिस पर्टिकुलर डेट को वाउचर इशू किया जाएगा दैट डेट इटसेल्फ इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। And if intended supply from this particular voucher is unidentifiable or not identifiable, then time of supply will be date of redemption of voucher. So if you are able to identify intended supply, तो जिस दिन वाउचर इशू होगा वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। And if you are unable to identify intended supply from this particular voucher, then time of supply will be date of redemption of voucher। और ये सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल के सिचुएशन जो है उसको हम कह सकते हैं अदर केसेस एज वेल, identifiable or any other cases. Now question is, sir, how do we reach to a conclusion or how do we understand whether from this particular voucher intended supply is identifiable or not identifiable? What are the various situations? हम उसको कैसे हम मान सकते हैं या समझ सकते हैं? How do we identify this or how do we understand this thing? Right? This is the particular case or situation जो आपको समझनी भी जरूरी है। Now let us say to understand this we will have two different examples.
इस चीज को समझने के लिए हम लोग दो डिफरेंट एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे. लेट्स हैव एग्जांपल 1. मान लेते एग्जांपल 1 में मैंने आपको एक वाउचर दिया. आई गेव यू वन वाउचर एंड टोल्ड यू कि दिस इज वाउचर worth rupees 10,000 which can be used for purchase of television set. ये मैं आपको 10,000 का वाउचर दे रहा हूं which will be used for purchase of a television set. और एग्जाम्पल 2 में मैंने आपको एक वाउचर दिया. आई गेव यू वन वाउचर अगेन वर्थ रुपीज 10,000 एंड आपको बताया कि यू कैन परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. आप इस वाउचर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकते हो वर्थ रुपीज 10,000. नाउ इन द केस ऑफ फर्स्ट वाउचर यू कैन परचेस ओनली अ टेलीविजन सेट. आप सिर्फ और सिर्फ एक टीवी या फिर टेलीविजन सेट ही परचेस कर सकते हो. इसके अलावा और कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हो. Therefore, you can say this TV means intended supply from this voucher is identifiable. You can say intended supply from this voucher is identifiable. Therefore, time of supply from this particular voucher will be डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. इसीलिए इस पर्टिकुलर वाउचर से या इस पर्टिकुलर केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. जिस दिन को ये वाउचर इशू किया जाएगा दैट पर्टिकुलर डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. बिकॉज इंटेंडेड सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. आप सिर्फ और सिर्फ एक टेलीविजन सेट ही परचेस कर सकते हो. बट इन द केस ऑफ एग्जांपल 2 यू कैन परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. यू कैन परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकते हो. फिर चाहे वो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, है ना, या एसी हो, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम. सो हियर यू कैन परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. So intended supply from this particular voucher is not identifiable. आपको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर वाउचर से इंटेंडेड सप्लाई क्या होने वाला है. इंटेंडेड सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल. Since intended supply is not identifiable, since you do not know what will be the intended supply, तो आप क्या कहोगे? Therefore, in this particular case, time of supply will be date of redemption of voucher. जिस पर्टिकुलर डेट को ये वाउचर रिडीम किया जाएगा that particular date will be the time of supply. So in the case of voucher, if the intended supply is identifiable, if you are able to identify what is the intended supply at the time of issue of voucher, then time of supply will be date of issue of voucher. जिस दिन ये voucher issue होगा that date itself is your time of supply. And if you are unable to identify what is the intended supply from this particular voucher, then your time of supply will be date of redemption of voucher. जब ये पर्टिकुलर वाउचर रिडीम किया जाएगा उस दिन आपका क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा. बराबर. सो एक बार हम देख भी लेते हैं प्रोविजंस को. सो इन द केस ऑफ वाउचर्स, सो वाउचर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है ना, डेजिग्नेटेड वैल्यू के लिए, राइट. टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई दैट इट कवर्स इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट. मतलब इशू करते समय अगर आप सप्लाई आइडेंटिफाई कर पाओगे देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर एट दैट टाइम. एंड इफ in any other case, मतलब if you are unable to identify the intended supply, then time of supply will be date of redemption of voucher in any other case.
अब कुछ लोगों के मन में ख्याल होगा कि सर क्या होगा कि मुझे एक वाउचर मिला विच इज फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिससे मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकता हूं। तो इंटेंडेड सप्लाई तो आइडेंटिफाइबल नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट रिडीम दैट वाउचर? अगर हम उस वाउचर को रिडीम ही नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, वाउचर भी लैप्स हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी लैप्स हो जाएगा, जीएसटी भी लैप्स हो जाएगा। सिंपल। कुछ लोगों के मन में और ख्याल आए होंगे कि सर क्या होगा कि मुझे एक वाउचर मिला, लेटेस्ट से उस वाउचर से मैं एक टीवी ही परचेस कर सकता हूं, ओनली अ टेलीविजन सेट कैन बी परचेस्ड। Therefore, intended supply was identifiable at the time of issue of voucher. Since intended supply was identifiable, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। यहां तक तो ठीक है सर, लेकिन क्या होगा कि मैं उस वाउचर को रिडीम ही ना करूं कभी, तो आई डू नॉट रिडीम दैट वाउचर, देन कुछ नहीं होगा। जब वाउचर इश्यू किया उस समय टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, उस समय जीएसटी लायबिलिटी फैक्टर कर ली, आपने रिडीम नहीं किया, वो आपकी गलती, आपकी किस्मत। जीएसटी वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। इशू करते समय टाइम ऑफ सप्लाई भी आइडेंटिफाई हो गया और उसका जीएसटी का लायबिलिटी भी ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। सिंपल इज दिस। ठीक है, तो अगर आपको नीड है तो आप लोग ये जो चार्ट हमने ऊपर बनाया है इसे आप कॉपी कर सकते हो। आप लोग ये एग्जाम्पल्स को भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और अगर नीड है तो एज ऐसे बैक जाके प्रोविजंस को वापस से सुन लीजिए, और अगेन वापस से सुनने के बाद अगर आपको लगता है नोटिंग वगैरह करना है, वापस से उसको रीड करना है तो रीड कर लीजिए, एंड देन यू ट्राई टू रीड दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे रीड करने की कोशिश कीजिए और इसका जवाब मैं आपको डिक्टेट करके बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट डू दिस and then we will proceed with question 5 and 6. So I hope आपने रीड किए हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी की है। लेट अस ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा? ए लिमिटेड सेल्स फूड कूपन्स टू अ कंपनी। ए लिमिटेड कंपनी को फूड कूपन बेचती है, विच गिव्स दिस टू इट्स एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ द अग्रीड परक्विजिट। ठीक है, कोई बात नहीं। द कूपन्स कैन बी रिडीम्ड फॉर परचेस ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड। They can be redeemed for purchase of any item of food। आप कोई भी फूड का आइटम परचेस कर सकते हो। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि वी आर आइडेंटिफाइंग टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिमिटेड। हम टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिमिटेड, जो फूड कूपन सेल कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है फूड कूपन का सिर्फ। ठीक है ना, अब ये जो वाउचर्स दिए गए हैं, इन वाउचर से यू कैन परचेस एनी फूड कूपन। आप कोई भी फूड कूपन परचेस कर सकते हो। यू कैन परचेस एनी फूड कूपन। कहीं पे कुछ स्पेसिफिकली बोला क्या कि आप यही तरीके का फूड परचेस कर सकते हो? आंसर इज नो। Therefore, intended supply from this voucher is not identifiable। intended supply आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हो। Since you are unable to identify intended supply at the time of issue of voucher, time of supply will be date of redemption of voucher। Okay, so let us try to solve this particular question। So हम लोग क्या कहेंगे? So we are trying to solve question number 5। हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। सो व्हाट वी विल से, सो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, है ना, या फिर पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए, देन वापस से जब वीडियो को रिप्ले करोगे उस समय लिख लेना। तो क्या कहेंगे हम, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर इज, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर इज, उसके नीचे ए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ द वाउचर if the intended supply is identifiable, or B, date of redemption of voucher in any other case। ठीक है, तो इतना लिख के हमने पहले प्रोविजन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन दिस केस सिंस any food item can be purchased, intended supply is not identifiable at the time of issue of voucher. Thus, time of supply will be date of redemption of voucher। तो जिस दिन यह वाउचर रिडीम होगा उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ठीक है, आंसर खत्म, स्टोरी क्लोज। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में जो आए थे, बेसिकली व्हाट वाज हैपेंड, लेट मी टेल यू। वो वाउचर का ही केस था और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सिचुएशन ए, सो 1 के जगह पर मैं लिखता हूँ सिचुएशन ए, फिर सिचुएशन बी, लाइक दिस, दो अलग अलग सिचुएशंस या 3 अलग अलग सिचुएशंस दे दी थी, एंड दीज वर फॉर 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, दिस वाज फॉर 4 मार्क्स, लाइक दिस पूछा गया था। ओके, सो यू आर एबल टू राइट एंड सॉल्व अगर मल्टीपल भी आवे तो भी। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है, लेट्स रीड इट फर्स्ट, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। With each purchase of large pizza during the Christmas week from Perfect Pizza, one can buy voucher for ₹20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza। तो लार्ज पिज्जा का अगर आप कुछ परचेस करते हो तो आपको एक वाउचर मिलता है विच कैन बी यूज्ड फॉर परचेस ऑफ स्मॉल पिज्जा ओनली। यहां पर आप इसको यूज कर सकते हो ओनली फॉर स्मॉल, छोटा पिज्जा। यू कैन रिडीम इट ओनली फॉर स्मॉल पिज्जा। आप सिर्फ एक छोटा पिज्जा खा सकते हो। So do you know or can you infer from this कि intended supply is identifiable in this case? मैंने आपको वाउचर दिया, मुझे पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट में आपको 20 रुपए का स्मॉल पिज्जा ही देने का है मेरे को और कुछ नहीं देने का है। क्वेश्चन 5 में आप जो चाहे वो फूड परचेस कर सकते थे, तो आइडेंटिफाइबल नहीं था, राइट। बट इन द केस ऑफ क्वेश्चन 6 हमें पता है कि इस पर्टिकुलर वाउचर से एक छोटू सा एक स्मॉल पिज्जा ही आप परचेस कर सकते हैं, राइट। सो इंटेंडेड सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 का जवाब क्या आएगा, यू विल से टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर इज, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर इज, उसके नीचे ए, date of issue of voucher if the intended supply is identifiable, next line में B, date of redemption of voucher in any other case, next line में in this case only a small pizza can be purchased
Thus, intended supply is identifiable at the time of issue of voucher. Therefore, time of supply will be date of issue of voucher. Date of issue of voucher. ओके, तो अकॉर्डिंगली आप इसको डील करोगे. नाउ अगर अज्यूम कर लेते क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में डेट्स भी दी होती, तो 5 में रिडेम्पशन की डेट दी होती तो हम एंड में लिखते थे दैट इज करके उसकी डेट. 6 में इशू करने की डेट दी देती होती तो दैट इज करके उसके आगे हम इशू की डेट लिख देते. ठीक है, दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस टू आवर आंसर. नाउ वी आर हियर टू स्टडी टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रेसिडुअल केस. Now we are here to study time of supply in the case of residual case. Now let's try to understand time of supply in the case of residual case. कि residual case में time of supply क्या रहेगा. ठीक है, let's try to identify this. So toss in case of residual case. अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि रेसिडुअल केस अप्लीकेबल कब होगा या फिर हम इसका यूसेज कब करेंगे. रेसिडुअल केस अप्लीकेबल कब होगा या फिर हम इसका यूसेज कब करेंगे. व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रेसिडुअल केस. ठीक है, सो रेसिडुअल केस विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन time of supply cannot be identified as per earlier rules. ठीक है, हमने जो अर्लियर अभी रूल्स पढ़े, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, चाहे वो वाउचर हो, अगर आप ये अर्लियर रूल्स को अप्लाई करके अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द अर्लियर रूल्स, then only you will apply this residual rule for identifying or calculating the time of supply. If you are unable to identify time of supply as per the earlier rules जो हमने अभी पढ़े, then only you will apply the residual rule for identifying and arriving at the time of supply. So residual rule में time of supply क्या है? If the situation is not covered by any of the provisions discussed above, then time of supply is fixed in the following manner. That is in the residual rule. उसमें आता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द पीरियोडिकल रिटर्न और इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड. तो रेसिडुअल रूल में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन द रेसिडुअल केस? सो इन रेसिडुअल केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ए में क्या है हमारे पास, देखिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न्स. सो ए में है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न्स और इन रिटर्न्स को कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स, जीएसटीआर. ठीक है, रिटर्न्स मतलब क्या, जीएसटीआर. और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन एनी अदर केस. नाउ ये क्या है पंगा सर? अब जीएसटी का रिटर्न वही इंसान भरेगा जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है. मीन्स इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ देन ओनली यू आर सपोज टू फाइल द जीएसटी रिटर्न. सो इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ,
तो आप ए यूज करोगे. सो इफ assessee is registered अंडर जीएसटी, अगर आप जीएसटी लॉ के अंदर में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ये ए वाले सिस्टम में फंस जाओगे, बिकॉज यू आर स्टैट्यूटरीली लाइबल टू फाइल जीएसटी रिटर्न. देयरफॉर यू हैव अ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, और अकॉर्डिंगली आपका जो ड्यू डेट रहेगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, मान लेते आप चोर हो, मानो, सिर्फ हो नहीं, मान लेते आप चोर हो और आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, इवन दो यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, और आप धड़ल्ले से अपना बिजनेस कर रहे हो, तो क्या होगा? एक दिन आपसे कोई मिलने आएगा. ये मिलने कौन आएगा? जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे. से आपके घर पे रेड होगी, आ गए आपके घर, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सब ट्रांजैक्शंस वगैरह देखें, पता चला दैट यू आर सपोज टू डिस्चार्ज जीएसटी वर्थ ₹1 करोड़. आपको 1 करोड़ का जीएसटी भरना है, बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. तो कैसे भरेंगे? तो आपको एक टेम्पररी जो भी एक मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म बना कर देगा और बोलेगा आप जीएसटी भरो. तो इन दैट केस द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. सो अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो तो रेसिडुअल केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. एंड इफ यू आर अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और इन एनी अदर केस, इसके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन आती है, then your time of supply will be date of payment of GST in any other case. So what we are trying to tell you, time of supply in the case of residual case, it will be applicable only when time of supply cannot be identified as per the earlier rules. And in this case, time of supply will be due date of filing returns under GST law or date of payment of GST in any other case. किसी और केस में GST पेमेंट करने की date will be your time of supply. ठीक है. सो आई होप इट इज शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर टू यू. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द रेसिडुअल केस. अब आगे टू मूव फॉरवर्ड, एग्जांपल, इन्वेस्टिगेशन रिवील्स क्लैंडस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. क्लैंडस्टाइन रिमूवल मतलब क्या? चोरी चोरी, चुपके चुपके, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने गुड्स रिमूव कर दिए, बेच दिए, सेल कर दिए. द एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कुछ नोटिंग, जो कच्चे डायरे पे आपने नोटिंग किया, या कुछ अपडेटेड मटेरियल वगैरह या कोरोबोरेटिव मटेरियल वगैरह के केस में. देन सप्लायर को डर लग गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ जीएसटी वगैरह लगेगा, तो सप्लायर वॉलंटरली पेज टैक्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू क्लोज द केस, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. तो इन दिस केस सिंस यू आर नॉट, ठीक है ना, इन दिस केस क्लैंडस्टाइन रिमूवल हुआ है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इस पर्टिकुलर केस में? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी. सर व्हाई लाइक दिस? बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड नहीं हो अंडर जीएसटी लॉ, सिंस यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर दी जीएसटी लॉ, इसलिए वो डेट का टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा. राइट. तो चाहिए तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो और एग्जाम्पल के आगे आंसर भी लिख लो, दैट इन दिस केस since time of supply cannot be identified by any of the provision of earlier, it will be identified as per the residual case. In this case, time of supply will be as under A, due date of filing returns, or B, date of payment of GST in any other case. Next line में, since supplier is not registered under GST law, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन रेसिडुअल केस. बात खत्म. और रेसिडुअल केस पे अभी तक टिल नाउ इन माय नॉलेज कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मिनिमम स्केल पर 2 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाएगा, मिनिमम स्केल पर. ठीक है ना, ज्यादा के लिए भी पूछ सकते हैं, बट मिनिमम आई एम सेइंग 2 मार्क्स. ठीक है. तो रेसिडुअल केस भी हो गया. लेट अस गो गुड्स वाला लास्ट रूल.
enhancement in value on account of interest, late fees, etc. for delayed payment of consideration. Now ये क्या है? So let us try to understand what we are trying to study. We are trying to study time of supply for enhancement in consideration for delayed payment. इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सर ये क्या बला है, व्हाट डज इट मीन, राइट? सबसे पहले इसको समझना है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। द वर्ड इज यूज्ड डिलेड पेमेंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एज अ सप्लायर और एज अ रेसिपिएंट, वॉट एवर यू कॉल इट, एज अ सप्लायर और एज अ रेसिपिएंट, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। आपने क्रेडिट यानी कि उधारी पे कुछ सेल किया, आपने क्रेडिट पर सेल किया वर्थ रुपीज लेटस से 10 लाख, ठीक है। और आपके जो टर्म्स है उन टर्म्स के हिसाब से पेमेंट should be made within let us say 1 month, एक महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर एक महीने में पेमेंट हो गया तो वेरी गुड, आप 10 लाख के 10 लाख ही पे करोगे। एल्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज से मान लेते हैं 50,000 विल बी चार्ज, ठीक है। ऐसा कुछ आपका एक टर्म है या ऐसा कुछ आपका एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब अगर सामने वाले ने एक महीने में पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, स्टोरी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले ने एक महीने में पेमेंट नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 का। अब लेटेस्ट से बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट मेड आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद पेमेंट हुआ, अलॉन्ग विथ, ये जो पेमेंट हुआ है इट इज मेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी, वॉट एवर यू कॉल इट। तो आपको पेमेंट कितना मिला? एक तो 10 लाख रुपए मिले जो आपका इनवॉइस वैल्यू था, सो यू रिसीव्ड योर इनवॉइस वैल्यू 10 लाख रुपीज प्लस यू रिसीव्ड इंटरेस्ट एज 50,000 रुपीज फॉर डिलेड पेमेंट, और टोटल आपको मिला है 10,50,000 रुपीज। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 50,000 रुपीज, हम लोग इस 50,000 रुपीज की बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द केस ऑफ डिलेड पेमेंट एंड उसका रिजल्टेंट कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इनहांसमेंट इन कंसिडरेशन फॉर डिलेड पेमेंट। ये जो बेसिक जो 10 लाख रुपीज है इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया होगा भाई, जब आपने इनवॉइस इशू किया होगा उसी समय उस 10 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। उसके लिए तो कुछ वांदा या कुछ प्रॉब्लम आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ये जो इंटरेस्ट है, जो डिलेड पेमेंट है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? सो इसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। ये जो डिलेड पेमेंट और का जो इंटरेस्ट का या कंपेंसेशन का जो बात है, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है, इट्स टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ receipt of
पेमेंट। जिस दिन ये जो डिलेड पेमेंट और कंसिडरेशन वॉट एवर यू कॉल इट, जिस दिन आपको ये मिलेगा, जिस दिन आपको ये एक्चुअल में रिसीव होगा, दैट पर्टिकुलर डे विल बी टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? देखिए, इनहांसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस एक्सेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. So in this case, time of supply of addition in value by way of interest or late fees or penalty etc. for delayed payment of consideration will be date on which the supplier received such addition in value. जिस दिन, जिस पर्टिकुलर डे को या जिस दिन सप्लायर को ये एडिशन इन वैल्यू मिलेगा या ये एडिशन इन वैल्यू रिसीव होगा, वो दिन, दैट पर्टिकुलर डे विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. अगर ये एडिशन इन वैल्यू कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, तो वो डिलेड पेमेंट या इंटरेस्ट या एडिशन इन वैल्यू का टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी नहीं आने वाला. ओके, बेस्ड ऑन दिस आप ये क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और इसका जवाब या सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए. देन वी विल डिस्कस ऑन इट. सो होपफुली आपने ये क्वेश्चन रीड किया है और सॉल्व करने की कोशिश की है. क्या कहता है क्वेश्चन? Radha Traders sold goods to Sham Sales on 6th June with the condition that interest at the rate of 2% per month will be charged if payment is not made within 15 days of the delivery of the goods. तो राधा ट्रेडर्स ने क्या किया? श्याम सेल्स को 6 जून को एक सेल किया गुड्स का उधारी में और बोला 15 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, और अगर 15 दिन में आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं 2% पर मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. श्याम सेल्स फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड दस पेड सम इंटरेस्ट. श्याम सेल्स ने विद इन द टाइम पेमेंट नहीं किया, इसीलिए उसने कुछ इंटरेस्ट पे किया. स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट पेमेंट. ये जो इंटरेस्ट का आपने जो पेमेंट किया, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये आपको पूछा गया है. दिस इज व्हाट आस्क्ड टू यू. तो क्या कहोगे आप? व्हाट यू विल से? टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जिस दिन, जिस पर्टिकुलर दिन या जिस पर्टिकुलर डे ये इंटरेस्ट और इनहांस पेमेंट रिसीव होगा, when you receives, that day will be your time of supply. बराबर? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी. ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, सो राइट डाउन व्हाट यू विल से. इन द केस ऑफ addition in value by way of interest or late fees or penalty etc. for delayed payment of consideration, time of supply is date on which the supplier receives such addition in value. जिस डेट को सप्लायर को ये एडिशन इन वैल्यू मिलेगा, दैट डे विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट लाइन में, therefore time of supply for interest received for delayed payment
by Radha Traders will be date of receipt of delayed payment ऑब्लिक पेनल्टी ऑब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो सिंपल वर्ड्स में इसका जवाब हो गया 2 मार्क या 3 मार्क या 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम में थियरी फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इफ यू वांट टू से हाउ मच मार्क्स तो सर वी कैन से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का इसका वेटेज हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस का। अब अगर आपने देखा होगा तो आगे तो शुरू हो रहा है सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13 शुरू करने से पहले बिफोर वी बिगिन विद द सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेट अस ट्राई टू सी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स यानी सेक्शन 12 में हमने क्या क्या चीजें देखी है और आपको क्या क्या चीजें उसमें से पता होनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू रीड और अंडरस्टैंड दिस थिंग एटलीस्ट वंस। सो हमने क्या क्या देखा या क्या क्या समझा अभी तक। तो फर्स्ट व्हाट वी अंडरस्टूड, फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड कि व्हाई वी आर स्टडिंग टॉस, कि भाई हम टॉस क्यों पढ़ रहे हैं। इसके 2 अलग अलग पर्पसेस है जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा हमने समझा टॉस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये भी हमने समझा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमने समझा गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चौथा हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर्स, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज में कॉमन रूल है। देन हमने समझा टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रेसिडुअल केस, जो कि अगेन गुड्स एंड सर्विसेज में कॉमन रूल है। और तीसरा और इसके बाद में हमने पढ़ा जो अभी पढ़ा एडिशन इन वैल्यू फॉर डिलेड पेमेंट। अगर लेट पेमेंट होता है तो जो एडिशन इन वैल्यू होता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम लोगों ने कुछ और चिंटू पिंटू चीजें भी देखी है, जिसमें एक आया था ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ड्यू डेट फॉर इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 ऑफ गुड्स, हमने समझा। बराबर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुड्स का इनवॉइस का ड्यू डेट क्या हो सकता है। देन हमने समझा मीनिंग ऑफ टर्म डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट भी हमने समझा। बराबर है। और इन सब के ऊपर हम लोगों ने एट द सेम टाइम क्या किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं, यानी क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी किए हमने। ठीक है। और इन सब में से 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो सारा चीज हमने पढ़ा है इस पे से एग्जाम में कौन से या कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो फर्स्ट दे कैन आस्क यू नंबर 1, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। either in the name of fill in the blank or match the pair or true or false और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज द केस में भी, कुछ भी कैसा भी वो लोग पूछ सकते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है थियरी में,
थियरी में आपको डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31, तो आपको पता होना चाहिए। हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, तो आपको थियरी में उसको लिखते आना चाहिए, एटलीस्ट वो रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए। वैसा भी आ सकता है, राइट। इंटरेस्ट और रेसिडुअल केस का भी आ सकता है। तीसरा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको डेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूछे कि भाई आइडेंटिफाई द डेट, राइट। चौथा, आपको अप्लीकेशन पार्ट भी आ सकता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ऑन डिलेड पेमेंट, ये अभी तक के रिसीव ही नहीं हुआ, ये अभी तक के रिसीव ही नहीं हुआ, तो क्या इसमें टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, क्या जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस ए बी सी एंड डी टाइप्स क्वेश्चंस। हम लोग ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन आवर चैप्टर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि इसमें से या इस तरीके का कोई भी सवाल आ सकता है। अब इसमें से ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है, इसको पूछने की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और लिस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि इस पार्ट से सवाल आएगा एट इंटर लेवल, ठीक है ना। वी कैन एक्सपेक्ट लिस्ट सबसे कम। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर पूछने की है, प्रैक्टिकल। वो जो डेट आइडेंटिफिकेशन वाले जो सम्स हमने प्रैक्टिस किया ना, इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। अब आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी प्रोसीड, एक बार क्विकली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने लिखा है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग क्विकली रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्या क्या चीजें हमने देखी। सबसे पहले we understood that time of supply, why we are studying it, because rate of GST will be as on the toss and exchange rate for currency conversion will be as of toss। यानी जो जीएसटी चार्ज करना है उसका जो रेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जो जीएसटी का रेट रहेगा उसी रेट से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर कोई फॉरेन करेंसी का इनवॉइस है या फॉरेन करेंसी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट भी उसी दिन के रेट को यूज करके किया जाएगा जिस दिन का आपका क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई है। तो इसमें मेजरली क्या आता है, सेक्शन 12 आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, और इनवॉइस इशू करने का जो सेक्शन है वो आता है सेक्शन नंबर 31, ठीक है। आपको ये सारी लिस्ट पता होना, जो लिस्ट आप लोग बना रहे हो रिगार्डिंग ये रट्टा मारने वाला या लर्न करने वाला सेक्शन नंबर का, उसमें आप इनके नाम लिख दोगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम फॉरवर्ड चार्ज का रूल पढ़े उसके पहले एक बार हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का रूल सेपरेट है और सर्विसेज का रूल सेपरेट है। बट इन द केस ऑफ वाउचर, रेसिड्यूअरी केस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, डिलेड पेमेंट ऑफ चार्जेस और चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा वी हैव अ कॉमन रूल फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। अब इसी में जब हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो इनिशियली हमने ये जाना कि इसको इट इज अर्लियर ऑफ 3 इवेंट्स एज पर द लॉ। इवेंट नंबर 1 इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इवेंट नंबर 2 इज ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड इवेंट नंबर 3 इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। लेकिन बाय नोटिफिकेशन ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को हमने हटा दिया है, इसीलिए भी हमारे पास में सिर्फ 2 ही इवेंट बचे हैं, जिसमें एक है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और दूसरा है ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और आउट ऑफ दिस 2 इवेंट्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहेगा, लेकिन ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31, जिसके लिए हमने सेक्शन 31 को भी साथ में रीड किया है। फिर सवाल आया, सर व्हाट विल बी दी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट क्या रहेगा। तो इसके लिए 4 अलग अलग सिचुएशंस है, 4 अलग अलग पैरामीटर्स है। एक, व्हेन गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मतलब लोकेशन 1 से लोकेशन 2 के ऊपर गुड्स जा रहे हैं। दूसरा, देयर इज नो मूवमेंट। तीसरा, कंटिन्यूअस सप्लाई। चौथा, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सो वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इज ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। In any other case, if there is no movement of the goods, due date for issue of invoice is on or before delivery of the goods or making goods available.
In the case of continuous supply, invoice has to be issued at the time of issue of statement of account or receipt of payment. In the case of sale on approval basis, invoice has to be issued at the time of supply or 6 months from the removal of the goods. मतलब अगर रिसिपिएंट ने विद इन 6 मंथ्स एक्सेप्टेंस दे दिया, मान लेते हैं 2 महीने के बाद ही एक्सेप्टेंस दे दिया, तो जब एक्सेप्टेंस दिया उस दिन को सारे काम आपका खत्म करो, इनवॉइस भी इशू करो, टाइम ऑफ सप्लाई भी आपका आ गया। लेकिन रिसिपिएंट ने अगर 6 महीने तक के अप्रूवल दिया ही नहीं, तो जहां पर 6 महीना खत्म होगा दैट डे यू हैव टू इशू द इनवॉइस। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एज पर सप्लायर्स बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सो ये कुछ हमने जनरल चीजें पढ़ी और देखी, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, राइट, अलॉन्ग विथ नोट्स। और यहां पर हमने फॉरवर्ड चार्ज को कंप्लीट किया। फिर आगे कंटिन्यूएशन में, इन द कंटिन्यूएशन वी स्टडीड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। So before understanding this, हमने ये समझा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करता है, रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी डिपॉजिट कर देता है। तो फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कौन करेगा? सप्लायर करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में सप्लायर इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, सप्लायर सिर्फ ये बताएगा बाय वे ऑफ डिक्लेरेशन और नोट दैट दिस ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिसिपिएंट खुद होके इसका जीएसटी कैलकुलेट करेगा, रिसिपिएंट खुद होके इसका जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। देयरफॉर इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय whom? By recipient. So time of supply of goods under reverse charge mechanism is earlier of majorly 3 events: date of receipt of the goods, recipient को actual में goods का receipt कब हुआ, date of payment by recipient, recipient ने supplier को payment कब किया, या फिर 31st day from date of issue of invoice। और अगर if you are unable to identify time of supply as per above rules, then time of supply will be date of entry of the goods in recipient's books of account। और डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट एज पर रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन द रिसिपिएंट्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। सो आपको ये पता होना चाहिए। आगे कंटिन्यूएशन में, अगर इवेंट ए बी एंड सी, अगर आपको ये तीनों इवेंट्स अवेलेबल है तो आउट ऑफ दिस 3 इवेंट्स विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई 2 इवेंट्स अवेलेबल है तो उन 2 इवेंट्स में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई एक ही इवेंट अवेलेबल है तो दैट वन इवेंट इटसेल्फ इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अगर तीनों भी अवेलेबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ एंट्री ऑफ द गुड्स इन द रिसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बेस्ड ऑन दिस हमने ये क्वेश्चन भी किए कुछ सॉल्व। ठीक है, और ये भी देखा कॉमन रूल या कौन से क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट फेज वी स्टडीड, in the next phase what we have studied, in the next phase we studied time of supply for vouchers। so voucher का हमने मतलब ये पढ़ा था that voucher means ये ऐसी चीज है जहां पर in the name of that token or that some like thing आप लोगों को वो टोकन या वो कूपन देकर कुछ गुड्स या सर्विसेज मिल सकती है। सो अगर वाउचर से इंटेंडेड सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल देन टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और इन एनी अदर केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। इसके लिए हमने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 भी देखा, और बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। फिर हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केस। हमने ये बोला कि रेसिडुअल केस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज पर द अर्लियर रूल्स। सो इसमें हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ईदर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स यानी जीएसटीआर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है उसके ड्यू डेट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन एनी अदर केस। और ये ड्यू डेट पिक्चर में कब आएगी? दिस ड्यू डेट विल कम इन द पिक्चर ओनली इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ।
फिर हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एनहांसमेंट इन डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पर मेजर चीज क्या है, अगर आपने क्रेडिट पर या उधारी पर कुछ प्रोडक्ट का सेल किया है और अगर विद इन द टाइम पीरियड अलाउड उस टाइम पीरियड में अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो उसके लिए आप जो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो चार्ज करोगे उस इंटरेस्ट और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में, राइट, नॉट ऑन द इनवॉइस प्राइस, नॉट ऑन द बेस वैल्यू, बिकॉज उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो जब आपने इनवॉइस इशू किया होगा उस समय ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा. So in the case of delayed payment of consideration, time of supply is date of receipt of payment और based on this हमने ये कुछ क्वेश्चन भी किया है. और एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी पढ़ने की कोशिश की है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने टिल नाउ पढ़ा है. अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, अभी हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी पढ़ना है, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स भी पढ़ना है. बट ये सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी फ्रीज इन योर माइंड और आपको अप्रोप्रिएट वे में इसको रिवाइज भी करना है. साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल पूछने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर. आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कुछ क्वेरी है तो लिख कर रखिए, वी विल डेफिनेटली सॉल्व देम. सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को शुरू करेंगे और वहां पर मेरा मेजर फोकस होगा टू लेट यू नो फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज आगे के रूल्स तो सेम ही है जो हमने अभी भी डिस्कस किया, वहां पर एक बार हमें सिर्फ रीड करना है. सो कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू.